I want to introduce a lot of new talent to the industry in terms of technicians and cast, and that's the dream. Now let's see how far I go, but it's what keeps me going. अगर आता भी तो the response would be that you test for it. We'll see if you suit the part. If you don't suit the part, then can't help it. I mean, the one has to be true to the film. You can't do picture favors के लिए नहीं बन सकती. हमारे ऊपर भी किसी ने favors नहीं किए ना हम किसी के ऊपर करेंगे. Simple. There is definitely 100% है पैरिटी बहुत ज़्यादा है जो एक्टर की ऑर्डर आज होती है आई एम नॉट सेइंग इट्स डिजर्विंग और वेल डिजर्विंग आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट ऑन द स्किल बट in terms of the holistic picture of the budget they do tend to load the film a lot more than a producer would like because उसकी वजह से फिर मैं अपनी AD टीम को ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती उसकी वजह से मुझे लोकेशन पे कॉस्ट यू नो आई हैव टू कट कॉर्नर्स वेयर आई शुडंट बी कटिंग कॉर्नर्स so it is a load and I feel like this is not something either all the producers come together and change it or the actors start telling the teams that यार थोड़ा सा कायदे में आ जाओ थोड़ा सा कैप कर लो अपनी कास्ट को बिकॉज इट bleeds the producer dry and if any producer is saying that no it's okay they are lying because it's not okay it's not done they need to correct it Nidhi ji हाँ जी welcome thank you Filmy Mantra has been following your work and craft of course but the mantra you've given to Bollywood is commendable जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है again फिल्म ने नाम कमा लिया तारीफ़ें बटोर ली हैं तमाम चीज़ें बट हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई बहुत सारा कुछ होता है एंड आई आल्सो गॉट टू नो दैट यू ऑल वांटेड टू स्टार्ट ऑल ऑफ दैट विद दिस फिल्म ओनली बिफोर सांड की आंख Oh yes, basically I definitely सबसे first film Tushar wanted to make was Shrikant and that time Sand Ki Aankh was not even on our radar but श्रीकांत का कांटेक्ट ढूंढना उसको चेज़ करना इतना चेज़ किया तुषार कॉल्ड हिम must have called him a million times I have sent him text messages called him he wouldn't respond and finally response आया भी तो तुषार didn't want to scare him off कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो तुषार ने बोला कि उसने एक अवार्ड जीता था NDTV का so he postured to be this NDTV reporter and said that I'm calling from NDTV मुझे आपकी इंटरव्यू लेनी है तो उसने बोला कि ठीक है इंटरव्यू देता हूँ मैं अभी बिजी हूँ मेरी सेक्रेटरी का नंबर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करो एंड द सेक्रेटरी also never responded so that became a saga in the meantime while we were chasing him we saw Satyamev Jayate and Amir had done an interview with the Dadis and he saw that interview and he was like अरे ये तो बहुत बढ़िया कहानी है किसी को बनानी चाहिए and it was in my mind that he should become a director now anyway so I pushed him I said why don't you only direct this film because nobody else will make this story but you are feeling for something for it it's moving you so you should direct it and that's how Sand Ki Aankh ki journey started and while we were shooting for Sand Ki Aankh I was researching for what we'll mostly make next बट उसकी रिसर्च करते वक्त मुझे श्रीकांत का आर्टिकल मिला और मैंने ऐसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो आर्टिकल बहुत ये ही वाज टॉकिंग अबाउट रिटायरिंग एंड गोइंग टू सम खेत एंड खेती बाड़ी एंड आई व्हाट नॉट ही वांट्स टू या एंड आई वाज लाइक क्योंकि इसने अपनी राइटिंग में जो कमाया था इट्स लाइक मेरे लिए बहुत है हम कहीं खेत छोटे से टाउन में खेती वाज लाइक नो तो मैं अब आप दी ब्यूटी देखी करना है तब फिर मैंने इसको बोला कि यू डायरेक्ट दिस फिल्म because you know this is your next step you're bored with writing you need to evolve instead of becoming a farmer become a director we'll both be happy so he said okay fine I'll only direct it and then that's how that journey started फिर जब मैं अगली पिक्चर की रिसर्च करके ये श्रीकांत का इसको भेजा था तो इसने बोला कि ये तो बहुत इंस्पायरिंग मैंने ये आर्टिकल इसलिए भेजा था बिकॉज आई सेड दैट डोंट बिकम अ फार्मर बेसिकली एंड ही सेड दैट दिस गाय इज रियली इंस्पायरिंग इसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी नहीं थी इस पर रिसर्च करते हैं So I said okay then while reading his articles when we discovered his personality to the articles then we were very clear कि यही next film होनी चाहिए और फिर तब तक रवि मंथा से भी contact हो गया था जो उसका mentor है who invested in Shrikant and Ravi was very instrumental in coordinating and getting the rights so thank you Ravi he was the one who got it done for us but Sand Ki Aankh also you know have my heart because I'm Haryanvi and Punjabi of course so I was too amazed to see the content the way you all present it all मुझे वो भी जानना है आपने बताया कि बड़ी बड़ी हीरोइन ने मना कर दिया फिर सामने से तापसी और भूमि आए तो उस फिल्म पे हमें बहुत ट्रोल किया गया था कास्टिंग के लिए बट नोबडी न्यू द जर्नी पर जैसे सबने बोला था आपको एज अप्रोप्रिएट लोग कास्ट करने चाहिए नीना जी ने बोला था उन्होंने भी कमेंट किया था अबाउट समथिंग अबाउट एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग एंड दैट शी वुड हैव आल्सो लाइक द अपॉर्चुनिटी एंड वी वुड हैव आल्सो लव्ड बट
our top two choices were Kiran Kher and Shabana Azmi. We wanted to make the film with them, but no studio was willing to give me money to produce the film. कि हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि फिल्म हमारे लिए वाइबल नहीं है, थिएटर में कोई आएगा नहीं. तो फिर हमें जो भी हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन एज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एज ग्रुप वी वर लुकिंग फॉर, वी वर नॉट गेटिंग द फंडिंग. देन वी सेड चलो वील स्टार्ट टैपिंग द मोर कमर्शियल स्लाइटली यंगर हीरोइंस in their like 50s, early 50s. They all also said no because they didn't see the potential in this film, या उनको वो I don't know नहीं करना था उनको for whatever reason, didn't work out. बहुत लोगों के पास गए हम, मतलब मैं कितने ही बताऊँ कितने लोगों के पास गए. आई थिंक हमें 3 साल लग गए होंगे कास्टिंग करते करते. बहुत थे पर मैं नाम लेना नहीं चाहती अब. It didn't work out, and I'm grateful to them. Thank you for saying no because we got a dream cast finally, Taapsee and Bhumi. Because when Taapsee heard it, she reacted in an instant that इसमें कोई question ही नहीं, मुझे पिक्चर करनी है. Bhumi same, she heard it and she said I've already like seen myself as Chandru. I'm doing this film. So and when you get that energy, then I was so excited that हमें ये दोनों मिल गई हैं जो feel कर रही हैं film के लिए. Versus मैं किसी के ऊपर pressure डाल के convince करूँ, then वो मज़ा ही नहीं आता. So they did such a fabulous job because they really believed in the concept. So it was eventually like How did you manage that dialect of Haryanvi? ट्रेनिंग करी, कोचिंग करी. एक सुनीता जी करके कोच डायलॉग कोच हैं. शी सैट विद बोथ ऑफ देम एंड शी ट्रेन्ड देम विद द डायलेक्ट there. और फिर हमने मेरठ में दादियों के एक्चुअल घर में शूटिंग करी थी जहाँ पे वो रहते थे. तो वी वर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ लोकल पीपल एज वेल, एंड वो रोज़ दादियों के साथ बैठ के बातें करती थी. सो दे पिक्ड अप देयर लहजा ऑल्सो. How difficult it was for Shrikant also, because of course you as a producer has a lot of things to manage. बहुत कुछ है आगे से फिल्म खत्म होने तक. और जैसा मैंने लास्ट पार्टी में डिस्कस किया था निधि के साथ कि अब क्या प्लान है, तो लाइक अभी तो मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ, उसके बाद देखूंगी क्या करना है. सो टेल मी. बेसिकली यस, हम जा रहे हैं हॉलीडे के लिए. 1 महीने के हॉलीडे के लिए बहुत ज़रूरत है. 1 महीना एक पिक्चर बन जाती है 1 महीने में. हाँ, पर अभी ये पिक्चर, एक पिक्चर बनाने के लिए 10 लाइफ टाइम्स मैंने जिए हैं. तो अभी वी नीड अ ब्रेक, बट विल कम बैक. हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ है जो तुषार डायरेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट. उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि NDA साइन किए हुए हैं. बायोपिक है अगेन, 1 वेब सीरीज एंड 1 फिल्म, बोथ आर बायोपिक्स बेस्ड ऑन रियल पीपल. बट एज अ प्रोडक्शन हाउस वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 2 फिल्म्स. 1 इज़ अ मराठी फिल्म जो तुषार के एसोसिएट डायरेक्टर है शिवराज वाईचाल, वो एक डायरेक्टर है हमारे लिए. ब्यूटीफुल फिल्म. और एक हमारी हिंदी फिल्म है विनय चावल, उसके डायरेक्टर है. उन्होंने लिखी है, इंग्लिश मीडियम लिखी हुई है फिल्म, और काफ़ी सारी पिक्चरें लिखी हैं उन्होंने. और ये फिल्म भी उन्होंने लिखी अपने डायरेक्शन के लिए. और जब मैंने सुनी और तुषार ने मतलब इंस्टेंटली, वो भी स्टोरी बहुत स्पेशल है, उसके लिए भी हम बहुत एक्साइटेड है. वो अब कास्टिंग शुरू, अब भी एज वी स्पीक उसकी कास्टिंग चल रही है. अब साथ साथ जहाँ तक मैं आपको समझ पाता हूँ, ये जो बच्चे भेजे जा रहे हैं ना, तुषार इज द रीजन फॉर दिस. इज लाइक गो, मेरा भी प्रेम खराब हुआ तो तू इसका भी कर क्या. सो टेल मी दैट आप स्टोरी में ज़्यादा विश्वास करते हैं रादर कि डिस्ट्रीब्यूशन पे फिल्म कैसे करेगी, बॉक्स ऑफिस में कैसे, इस तमाम चीज़ें. आई लव दैट फैक्ट अबाउट यू. यस. सो वो प्रेशर है कहीं ना कहीं. पता है, आई डोंट नो, ये प्रेशर सिर्फ स्टोरी पे लेते हैं हम, बिकॉज वो तुषार एंड आई बिलीव दैट कंटेंट इज़ किंग. और हम ऐसे अभी तक तो हमने ऐसे काम नहीं किया ये एक्टर की डेट्स है तो इसके अराउंड कोई सब्जेक्ट बना दो, वो हमारी थिंकिंग ही नहीं. हम ऐसे नहीं कर सकते हैं. मतलब आफ्टर श्रीकांत सक्सेस, गॉड इज़ काइंड. देयर हैव बीन सम बिग एक्टर्स हु कॉल्ड टू से दैट यू नो इफ यू हैव समथिंग इन दिस विंडो, बट वी कांट फंक्शन लाइक दैट. हमें वो वैसे काम करना नहीं आता. द स्टोरी हैज़ टू स्पीक टू अस. इट हैज़ टू बी समथिंग दैट वी रियली वांट टू मेक, बिकॉज सर तो फार्मर बनने वाले थे, तो ऐसी तो कंटेंट वो बनाएंगे नहीं जो उसको सूट नहीं करता है. सो वी वर्क अ लॉट ऑन द कंटेंट. और हमारी कोर बिलीफ ये है कि हमारा कंटेंट राइट है, फिर देखेंगे उसमें कौन फिट होता है, फिर बनाएंगे स्टोरी. आपकी पर्सनल कोई इच्छा है कि मैं चाहती हूँ एक बार कि मेरी इस स्टोरी, इस तरह की लव स्टोरी पर भी काम हो? मेरी पर्सनल बहुत सारी इच्छाएं हैं. आई बिटवीन द टू ऑफ अस आई एम द एम्बिशियस वन. Like I said, he would have retired. So I have a lot that I want to accomplish, a lot that I want to achieve. I've just started scratching the surface. Thankfully, God has given me Shrikant, and it's been successful. But I'm not able to dwell on the success, and I think it's a good thing because I'm already thinking of what next. Because it's also a great responsibility. I feel like we should do much better numbers in future. Like Shrikant has done great for the environment and for the budget it's made at. But I want to do bigger, better every time. That's what keeps me going and moving. I want to do all types of genres. I want to introduce a lot of. I want to be in a position. Rekha ji and Jaya ji in a film. I want to introduce a lot of new talent to the industry in terms of technicians and cast, and that's the dream. Now let's see how far I go, but it's what keeps me going. What is your way of casting people? स्क्रिप्ट पढ़ के हम स्टोरी जब पूरी होती है, दैट्स व्हेन तुषार एंड मी सिट एंड वी डिस्कस हु
we think can pull this off, who fits this. Ideally, who will be either who we feel is a fantastic actor like Raj, who's a chameleon, जो किसी भी रोल में ढल सकता है, या बट श्रीकांत का रोल तो मतलब एक ही नाम था और कोई था ही नहीं जो पुल ऑफ हमारे हिसाब से कर सकता था, तो वी वर सीइंग इट. बट यूजुअली यू नैरो डाउन, जब कैरेक्टर बनता है तो कुछ आइडिया आ जाता है कि नहीं हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर पहले स्टोरी बनती है, फिर हम देखते हैं इस कैरेक्टर में कौन फिट होता है. ऐसा कोई प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाते. तो ऐसा हुआ किसी ऑडिशन को दोनों में आपस में लड़ाई हुई कि नहीं आई वांट. Strangely, casting, we've been on the same page always. We've never fought for cast, even for the important tertiary characters, primary characters, secondary characters. We are always बड़ी instinctively react करते हैं जब हमारा casting director हमें auditions भी दिखाता है. तो within 10 seconds we know we are casting this person. The very important, interesting story of this film is the father who's been appreciated so much, who played Raj's father in the film. His audition was shown to us for some other character, and I found him very interesting, and he was not working for that character. तो शायद से ये इस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठता, पर इसको फादर के लिए टेस्ट करो, ये किल कर देगा. तो एंड दे शोड अस द टेस्ट फॉर द फादर, ही वाज इट, एंड वी लाइक लॉक्ड इन, लाइक वी लिटरली वी डिडंट पूरा टेस्ट भी देखा, 10 सेकंड देख के हमने बोला ये इसको लॉक कर लो. तो वी आर लाइक दैट. आई फील लाइक वी हैव द सेम वांट, डिज़ायर. एक्चुअली हम इतना लड़ लेते हैं क्रिएटिवली स्क्रिप्ट पे कि जब तक हम कास्टिंग पे आते हैं बड़ा क्लियर पिक्चर होता है कि कैसा बंदा चाहिए. अभी जो दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में एक्टर्स, वो भी तो कॉल करते होंगे कि अब आपका घर अच्छा चल रहा है, आप माशाल्लाह अच्छे पिक्चर्स कह रहे हैं, हमें भी कास्ट करो. हाउ डू यू नो व्हाट इज योर वे ऑफ रिस्पॉन्सिंग दैट? यार ऐसा नहीं आता, हमें ऐसे कॉल्स नहीं आते हैं. आई थिंक दैट मे बी वी आर नॉट दैट बिग, और मे बी आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स लाइक दैट. आई हियर अ लॉट दैट इट वर्क्स लाइक दैट कि दोस्त बोलते हैं हमें कास्ट कर लो. मेरा तो ऐसा नहीं, सर्कल कोई नहीं बना है जहाँ पे मेरे दोस्त आके हैं, बहुत सारे दोस्त, पर ऐसे कोई नहीं बोलता कि मुझे कास्ट कर लो. तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में. हमारी कास्टिंग बड़ी क्लियर कट होती है, स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करती है, तुषार और जो बोलता है उसका फाइनल कॉल होता है. बट नो, ऐसे कोई नहीं आता कि हमको कास्ट करो. पुअर दे. बट अगेन अगर आता भी तो यू विल नॉट रिस्पॉन्ड. अगर आता भी तो द रिस्पॉन्स वुड बी दैट यू टेस्ट फॉर इट, वील सी इफ यू सूट द पार्ट. इफ यू डोंट सूट द पार्ट देन कांट हेल्प इट. आई मीन द वन हैज टू बी ट्रू टू द फिल्म. यू कांट डू पिक्चर फेवर्स के लिए नहीं बन सकती. हमारे ऊपर भी किसी ने फेवर्स नहीं किए, ना हम किसी के ऊपर करेंगे. सिंपल. अनुराग कश्यप का रिसेंट एक स्टेटमेंट की एक्टर से ज़्यादा तो उनके पसीना पहुंचने वाले जो लेकर आते हैं वो ले जाते हैं. पहुंचने वाले. सी देयर इज डेफिनेटली 100% है, पैरिटी बहुत ज़्यादा है जो एक्टर की ऑर्डराज होती है. आई एम नॉट सेइंग इट्स डिजर्विंग और वेल डिजर्विंग. आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट ऑन द स्किल, बट in terms of the holistic picture of the budget, they do tend to load the film a lot more than a producer would like, because उसकी वजह से फिर मैं अपनी AD टीम को ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती. उसकी वजह से मुझे लोकेशन पे कॉस्ट, यू नो, आई हैव टू कट कॉर्नर्स वेयर आई शुडंट बी कटिंग कॉर्नर्स. सो इट इज़ अ लोड, एंड आई फील लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग ईदर ऑल द प्रोड्यूसर्स कम टुगेदर एंड चेंज इट, और द एक्टर्स स्टार्ट टेलिंग द टीम्स दैट यार थोड़ा सा कायदे में आ जाओ, थोड़ा सा कैप कर लो अपनी कास्ट को, बिकॉज इट ब्लीड्स द प्रोड्यूसर ड्राई. एंड इफ एनी प्रोड्यूसर इज सेइंग दैट नो इट्स ओके, दे आर लाइंग, बिकॉज इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट डन, दे नीड टू करेक्ट इट. एक्टिंग तो चलो समझ में भी आता है, वो तो इंटरव्यूज़ के लिए भी डिमांड करता है अभी कि एक्टर के साथ वी रिक्वायर दिस मच ऑफ अमाउंट बिकॉज उनके ये लोग आएंगे वो आएंगे. मैं क्या सर हेलो इंटरव्यू करना है हमें, दिस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. इट्स अ लॉट. तो वी आर लाइक व्हेन वी से नो कि ठीक है मत करो आप. No, yeah, that's what people have to then take a stand, because you know, because now agents are also guiding, advising their actors, because they are thinking of the actors' benefit, right? कि मेरे actor को ये मिलना चाहिए, but they also have to start thinking of the bigger, larger picture of how a film is made, what are the economics, and don't bleed the producer. मतलब give the film the best shot. So there is this thing also from the casting perspective. I shot for a series. I did 2 scenes in. अरे congratulations, actor. Entourage में लेके जाना. Not. मैं अकेला ही जाता हूँ. इतनी दूर तो मेरी टीम वैसे भी बोल देती है हम तो नहीं जाएंगे जहाँ पे शूट हो रहा है. तो वो आई रिमेंबर बिफोर मी जब मैं सेट पर पहुंचा मैंने पूछा कि आपने किस किस को अप्रोच किया. उन्होंने बताया बड़े अच्छे नाम लिए. एंड व्हेन दे कास्टेड मी ना, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी हमें ये वीडियो हमने देखी, हमें पसंद आया आपका लुक साड़ी वाला, आई वी वांट टू कास्ट फॉर दिस सीरीज. मैं क्या ओके. ऑडिशन मांगा, मैंने भेजा तमाम चीज़ें, फिर बोलते हैं बट देयर इज नो बजट. मैं क्या आई विल नॉट डू इफ देयर इज नो बजट. मैं क्यों करूँगा? आई एम वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, आई विल नेवर डू दैट. फिर उनका एक बेसिक बजट आता है कि आई एम स्पीकिंग टू टीम कन्विंसिंग देम एंड ऑल दैट ड्रामा दे डिड. फिर आता है आधे घंटे में, हाँ देयर इज अ बजट. मैं कहा अच्छा कितना बजट है? इतना बजट. मैं कहा इतने में तो नहीं, थोड़ा बढ़ाओ. फिर वो मुझे समझ नहीं आता ये टन टेक क्यों होते हैं. फिर अभी भी द बजट आई गॉट इन लॉग्ड
I got to know the people they approach, and I'm like, hello, I have asked for very less because they must have asked for a lot. तो पता है आई थिंक ये बहुत वेरिएबल है. इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स दैट फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव मेड अ बजट आई विल पुट दिस मच. मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की पिक्चर है, मैंने बोला इसमें से 25 मुझे कास्टिंग में डालने हैं, 25 में से ये मेरे प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, इनमें 15 चले जाएंगे तो मेरे पास 5 बजे. इस 5 में से अगर मुझे देना है इन्होंने कितना काम किया, इनकी बॉडी ऑफ वर्क कितनी है, हाउ मच शुड आई बी गिविंग. एंड देयर आर सो मेनी ओपिनियंस ऑन दैट, लाइक यू हैव ईपीज, यू हैव लाइन प्रोड्यूसर्स, देन अदर एक्टर्स कौन है. ये बहुत वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल. सो इट्स ये नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि कितने नेगोशिएशन कर सकते हो. दैट्स नॉट फेयर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पैरिटी वहाँ पे नहीं टच कर सकते जहाँ पे करना चाहिए. तो कॉस्ट कटिंग ऐसे इस लेवल पे करनी पड़ती है जहाँ पे नहीं करनी चाहिए. ओके, विद दैट नोट, निधि जी बहुत कुछ कर रही हैं आप ज़िंदगी में. आई नो, आई रियली विश आप जो भी करें बहुत अच्छा करें और पंजाबियत को जिंदा दिली रखें. आपके साथ पे आलू का पराठा मिलता है कि नहीं? बिल्कुल. Thank God. I could die for that. I've done, you know, eating vada pav in Mumbai. नो नो वी हैव अ गुड मेन्यू. खाना फूडी हूँ मैं, खाना अच्छा होता है. मैं चाहता हूँ आप लोगों को विशेष ज़रूर दें थैंक यू. कि अगले प्रोजेक्ट्स जो हैं आंखें गड़ा के वो देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.